we had started off the chapter directing, and I told you a very interesting thing कि when you go and watch a movie, जब आप किसी मूवी को देखते हो तो it is actually the director, अगर उसने सही सही हीरो, सही हीरोइन, the right person for choreography, the right person, the right perspective, the cinematography, सब कुछ अगर उसने सही तरीके से लिया हुआ है तो then that movie comes out to be a hit. That is why we have some great directors like Karan Johar, Mani Ratnam. तो जब हम इनका नाम लेते हैं तो we say that they are great, and this is because they look into all the aspects of the work. तो जो डायरेक्टिंग का जो वर्ड का मीनिंग है, इट मीन्स समथिंग वेयर यू आर गाइडिंग, यू आर training, you are counseling, you are leading the people with your own example. And even in an organization also you need to have a proper directing, क्योंकि आपने ऑर्गेनाइज कर लिया अपने कंपनी को, एंड देन आपने जो है यू हैव ऑल्सो have the appropriate staff. लेकिन वो स्टाफ काम कैसे करेगा? And what the staff should also know. अगर उससे गलती होती है, उसे नहीं पता होता, if the staff doesn't know, तो how it should move on. A good directing helps in instructing the employees, guiding them appropriately in case of any grievances, counseling them, helping them in motivation, and sometimes it is leading them with example. So the very first what comes is, what is the meaning of directing? Then we come, what are the features of directing? क्योंकि अगर डायरेक्टिंग नहीं होगा तो आपका एक्शन नहीं हो पाएगा. इट्स एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन. वी हैव टू एग्जीक्यूट. एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है बच्चा, वी हैव टू एग्जीक्यूट इट. हमें काम को करना है. इफ आई गो एंड सिट ऑन अ टेबल, it's not that ki I have been appointed, unless and until I don't start working, so I have to execute my work, and this is the direction ki Rama, this is your profile, this you are going to report to this person, these are the way work you need to do. ये हम end result चाहते हैं, so it initiates the action. Directing takes at all the levels, means top level middle को देता है एंड मिडिल लेवल सुपरवाइजरी को देता है. एंड जो हमने ऑर्गेनाइजिंग में वी हैव मेड द अथॉरिटी टू रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो रिलेशनशिप को लिया ना, दैट विल बी यूज्ड. इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. हम हमेशा अपने से नेक्स्ट सबऑर्डिनेट को वी विल बी गिविंग द डायरेक्शन. वी विल नॉट बी डायरेक्टिंग आवर बॉस की सर आप जाके ये काम कर लो. And it's a continuous process. It takes place throughout the life of the organization, irrespective of people occupying managerial post. Because at one, एक बार काम खत्म हुआ तो we need to go for the second. एक project खत्म हुआ तो we need to go for the next. Why do we need? If your teachers don't direct you, अगर आप एक नए स्कूल में गए and your teachers डोंट डायरेक्ट यू कि आपको कहाँ जाना है, किस क्लास में बैठना है, व्हाट इज, मतलब कि आपकी टीचर्स कौन होंगी, हाउ विल यू एंटर इनटू एनीथिंग. इट्स नॉट पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल योर टीचर इज नॉट गाइडिंग यू. आपकी टीचर आपको टाइम टू टाइम नहीं बताती हैं वेयर यू आर लैकिंग. She is not motivating you to participate in the extracurricular activities. She is not giving you the examples. So how you will be ensuring? Why do we need schools? School और college के अंदर यही फर्क होता है. In the school we give continuous direction, whereas in the college the direction is given on a
लार्ज स्केल, आपको खुद को डायरेक्शन को समझना है. इन द स्कूल्स यू विल बी गिवन ईच एंड, आपके एफर्ट को पूरे इंपॉर्टेंस दी जाती. सो इट हेल्प्स इन इनिशिएटिंग द एक्शन. यानी कि अगर एक सुपरवाइजर अपने सबऑर्डिनेट को गाइड करता है कि आपको ये काम करना है, आपकी ये ड्यूटीज है, आपका सामान यहाँ पे रखा होगा, आपको इतने बजे यहाँ पर पहुंचना है, तो वर्कर जो है वो अपने काम को करने की कोशिश करेगा. इट इंटीग्रेट्स द एम्प्लॉइज एफर्ट्स. यानी कि इंडिविजुअल का काम है, मेरा काम मेरा है, आपका काम आपका है, बट हाउ विल इट इंटीग्रेट? क्योंकि एवरी इंडिविजुअल हु इज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कंट्रीब्यूटिंग टू द कंपनी. सो इट वुड इंश्योर कि जो मेरा काम है, बिकॉज आई नो मेरा बॉस कौन है, मुझे नेक्स्ट से क्या काम करवाना है, तो मेरा बॉस मुझसे, मैं अपने नीचे से, we are all integrating our efforts towards the organizational goal. It guides employees to realize their potential. क्यों? एक गाइड तो ये है कि they help you to initiate the action, and दूसरा गाइड है whenever you are wrong, they would be giving you the guidance, they would be giving you the examples, they would be motivating you. It facilitates the introduction of needed changes in the organization. क्योंकि जब आपको गाइडेंस मिलेगी तो कोई भी चेंज होगा तो आप उसको easily अपनाओगे. As I have been many times, I have shared it with my students that when computers were introduced in our country, तो many of the banking sectors के जो लोग थे, they went on strike, क्योंकि उनको लगा था if computers are coming that means हमारा काम खत्म. But a proper direction by the government, a proper meeting, उनको बताया गया कि this is going to facilitate you, this is going to help you out in your work. तो वो जो cooperation नहीं था वो समझ गए. And it also brings a stability, क्योंकि जब आपको motivation मिलती है, आपको फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिलते हैं, तो डेफिनेटली यू आर मोटिवेटेड टू, आपके अंदर एक ड्राइव होता है, मुझे इस काम को करना है, आप कमिटेड होते हो, एंड दैट आप उस कंपनी को लीव नहीं करोगे. सो देयर वुड बी अ स्टेबिलिटी. देन इट ऑल्सो, आपको पता है व्हाट इज योर वर्क, अदर इंसान को पता है क्या है, तो इट इज इंटीग्रेटिंग द वर्क, तो कोऑपरेशन फॉस्टर होता है, तो एक बैलेंस होता है. सो दैट इज व्हाई a good direction is very important. Now when we come to the elements of direction, we have 4: supervision, motivation, leadership and communication, which I had already discussed with you at length. When it comes to supervision, आपके पेपर में क्वेश्चन आता है what is the मतलब कि who is the supervisor and what are the qualities. एक अच्छा सुपरवाइजर वो होता है बेटा, the person who is able to instruct, a person who is overseeing, super and vision, यानी कि द पर्सन जो है ओवरसी कर रहा है आपके काम को, एंड टाइम टू टाइम द पर्सन इज ट्राइंग टू गाइड यू. ही इज जस्ट लाइक अ मदर, ही इज जस्ट लाइक अ फादर, ही इज जस्ट लाइक अ फ्रेंड. आपकी परेशानियों को भी दूर करते हैं. ही इज स्माइलिंग, ही हैज अ डायनामिक, ही मतलब he or she should have a dynamic personality. The dynamic personality here is not the personality which we have in the physical. It means the person should understand कि कैसे हमें काम करवाना है. See, एक चीज होती है command, do this, और दूसरा होता है getting work done by using hook or crook method. कभी डांट, कभी प्यार. That's a good supervisor.
बिकॉज अगर सुपरवाइजर सही होगा तो जो कंट्रोलिंग आपकी होगी दैट वुड बी एफिशिएंट, काम टाइम टू टाइम वो ओवरसी करेगा एंड इमीडिएटली वेर एवर देर इज अ लैक दैट कैन बी रेक्टिफाइड. द सेकेंड इज मोटिवेशन, an inner feeling. What is motivation? It's an inner feeling. When you get the results what you want to, when you get a recognition, when you get a praise, that's motivation. Example, yesterday the results came and my toppers as I had expected. Like I have one very sweet girl, Punya, hundreds in all subjects. I have never, no, उसको देखकर अच्छा लग रहा था. Though she is very intelligent, मेरा तो उसमें रोल था ही नहीं, वो तो पैदाइशी इंटेलिजेंट है. But when we see that results in front of us, that the trust that the child had put on us, that gives us. So motivation is when someone is giving you some pat. Many parents, message me personally. We had one child, जो कि not to say, but she is having some problem. She is not a normal child. She is abnormal child because she fell down from the stairs when she was in third class or something. Then उसके दिमाग पे असर है. So she doesn't know, she doesn't know. She came to my home for counseling and उसको यही नहीं पता था कि उसे कैसे बात करना है. And she was like कि मैंने उसको चीज़ें वगैरह दी, खुश होके खा रही थी. And I never knew उसके पेरेंट्स ने मुझे बताया है सारा, मतलब कि what was her background. And later on they also told कि उन्होंने जो है CBSE के साथ में ओपन स्कूल से भी उसका 10th भरवा रखा. मतलब नॉट द नॉर्मल सब्जेक्ट्स बट द मतलब कि नॉर्मल वैसे पेंटिंग वो करके, कि उनको लग रहा था कि वो CBSE से पास नहीं होगी. So they came to my home for the counseling also, and that girl, she's so childish. अपनी तरफ से I did all my best so that she is getting at least appropriately कर ली. And she used to answer also. उसको सब तो उसके parents कहते थे she will be forgetting. Now when yesterday the results came, you won't believe she got 72 in English and 71 in SST. And maths and science में बिल्कुल border line पर थी, but she passed all the subjects. And when their parents, phone भी किया, then they messaged me and it was like a motivation to me कि oh wow, ऐसा बच्चा. तो मोटिवेशन होता है एक इनर फीलिंग को कि नो आई हैव टू गिव द बेटर. ओके, अगर मैंने वहां पे किया है तो नेक्स्ट बैच के साथ आई नीड टू डू दिस थिंग ऑल्सो. सो मोटिवेशन होता है एन अर्ज टू डू समथिंग, एन इंटरनल फीलिंग. It is an internal feeling and it is a goal oriented or goal directed behavior. For example, एक कंपनी में काम करने वाला इंसान क्या चाहता है? अगला पोजीशन, प्रमोशन, और समटाइम्स इट इज अ टारगेट बेस्ड इंसेंटिव्स मिलते हैं उन लोगों को. नॉर्मली ऑफिस के अंदर आपके वेजेस इंसेंटिव्स मिलते हैं, तो दे वांट दैट. तो वो उनका टारगेट होता है, उनका गोल होता है. नाउ that day also I told you and again I am telling you, एक सिलेक्शन और एक आपका मोटिवेशन दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं. सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस, मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव. आपकी टीचर्स आपको जब डांट लगा रही है, समटाइम्स द कंपनी में स्टॉप द प्रमोशन, दे में स्टॉप द इंक्रीमेंट. कभी कभी उनको मेमो इश्यू किया जाता है, इफ यू डोंट वर्क देन वी हैव टू. दीज आर नेगेटिव मोटिवेशंस, बट वो भी हमें हेल्प करता है क्योंकि हमें डर होता है. And positive is when you are given the promotions, you are given the incentives, you are praised. It's a complex process because a company में a single person isn't working.
even at the same level, two persons working may be having different aspiration. किसी को पैसा चाहिए, किसी को रिकॉग्निशन चाहिए. आप एक ही यूनिफॉर्म दोनों के लिए कैसे करोगे? आपने पैसा दिया, वो कहता है मैंने इस पैसे का क्या करना है. आपने प्रमोशन दिया, वो कहता है मैं प्रमोशन का क्या करना है. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल. जो कंपनी ने पॉलिसी बनाई है उसका यूनिफॉर्म इफेक्ट होगा. दिस इज वेरी डिफिकल्ट, और इसको ना स्टडी करते रहते हैं. इट्स तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. द थर्ड इज लीडरशिप. लीड, इसमें आपका पेपर में मोटिवेशन में आया था एंड अ ड्राइव, एन इंटरनल फीलिंग, दैट्स अ की वर्ड. एंड इसके अंदर आपका आएगा इन्फ्लुएंसिंग द पीपल विद योर ओन बिहेवियर. आपका जो बिहेवियर है उससे आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करते. सी whenever I give this एग्जाम्पल, तो मैं बच्चों को हमेशा एक बात बोलती हूँ. इमेजिन करो आप लोग सब जा रहे हो, भीड़ में जा रहे हो, सब लोग जा रहे हैं, राइट, एंड देयर इज लॉट्स ऑफ क्योस. बड़े सारे गाड़ियाँ खड़ी, बड़ी सारी गाड़ियाँ आपकी वहाँ पे खड़ी है, राइट. फॉर एग्जाम्पल यू आर मूविंग, बड़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी है, नीचे. देयर इज नो वे. सडनली आप क्या करते हो, यू सी दैट अ पर्सन हैज टर्न्ड, उसने एक शॉर्टकट लिया एंड वो मूव करना शुरू कर देता है. व्हाट हैपेंस इज सब लोग उसको फॉलो करना शुरू करते हैं. दिस पर्सन जिसने अपने बिहेवियर से दूसरों को इन्फ्लुएंस किया, दैट इज अ लीडर. दैट पर्सन इज अ लीडर. and this is a very common example, and this we see on the roads often. सब लोग एक तरफ होते हैं, पी 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 कर रहे होते हैं, अचानक से एक आदमी पीछे मुड़ता है, हम सब उसके पीछे मुड़ते हैं. तो अ लीडर इज अ पर्सन हु इन्फ्लुएंसेस अदर्स विद हिज ओन बिहेवियर. व्हेन इट कम्स टू लीडरशिप, again the features of a good leader is it's a continuous process. It indicates the ability of an individual to influence others. वो अपने बिहेवियर से दूसरों में चेंज लाता है, बोल कर नहीं लाता है बेटा आपको ये करना है. वो अपने बिहेवियर से. सी व्हेन यू सी योर बॉस वर्किंग 24 आवर्स, आप नहीं बोल सकते हो कि सर मुझे छुट्टी दे दो. यू कैन नॉट. If your boss is working 24 hours, you cannot ask for a holiday. So that's an influence. It is exercise to achieve common goals of the organization. It indicates the interpersonal relations between the leaders and the followers. कि वो किस तरीके से अपने relationship को बढ़ाता है. In every company you have a hierarchy. सबसे ऊपर आपका जो है टॉप लेवल है, लेकिन जब मिडिल लेवल आता तो मिडिल के नीचे आपके अलग अलग लोग काम करते हैं, उनके अपने एक टीम मेंबर्स होते हैं. तो जो टीम लीडर होता है उसको हम टीम लीडर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ही इज लीडिंग अलोंग विद द मेंबर्स, एंड इफ ही इज एफिशिएंट द एंटायर टीम्स वर्क इज एफिशिएंट. Now we have 3 kinds of leadership, which always comes in your paper and is one of the most important part of this chapter. और इसमें से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. मतलब मोटिवेशन में भी आपका बहुत कम फीचर्स आते हैं. मोटिवेशन में आपका फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल जो इंसेंटिव्स अभी हम पढ़ेंगे वो आता है. मोटिवेशन में आपके जो है मैस्लोज थ्योरी आता है. लेकिन लीडरशिप में आपका टाइप्स ऑफ लीडरशिप आता है. Now the very first is autocratic, या हम उसको बोलते हैं बॉस ओरिएंटेड लीडरशिप. यानी कि what I say need to be done.
द डिसीजन इज सेंट्रलाइज्ड। जो हमारे बॉस ने हमें बोल दिया, हमें उसको जो है जस्ट एंड जस्ट वी हैव टू फॉलो। देयर शुड बी नो क्वेश्चंस, देयर इज नो सजेशन, देयर इज नो डिस्कशन, देयर इज नो नेगोशिएशन। सेकेंड इज democratic, a very participative, a very, you can say, common one. You can also say employee centered. इसमें the person who is boss, leader, he would also be taking help of his subordinates, regular meetings, initiative, उनके suggestions, एक काम को करने में they would be taking the help of everyone, which is very essential for a teamwork. And the third one is laissez-faire. laissez-faire को हम free rein भी बोलते हैं, REIN, means where the work is completely independently given to the employees. ये दो सिचुएशन में होता है, पेपर का क्वेश्चन है। दिस कम्स अंडर टू सिचुएशंस। एक सिचुएशन है व्हेन द एम्प्लॉयज आर हाईली स्किल्ड, जैसे टॉप लेवल ने छोड़ दिया अपने नेक्स्ट लेवल पर, laissez-faire, डू एंड गेट द रिजल्ट्स। सेकेंड होता है समटाइम्स द कंपनीज मैनेजर्स वांट टू ओनली फोकस ऑन कोर एरियाज, तो वो अपना जो काम है, जो नॉन कोर इम्पोर्टेंट मतलब नॉन इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं, वो दे देते हैं। लाइक कंपनी में कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, द टॉप लेवल इज नॉट गोइंग टू कम इन टू दिस वन। जैसे इन मेनी ऑफ द कंपनीज दे हैव द एनुअल पार्टीज एंड ऑल, सो दिस is not given to any particular, उसमें कोई आपका बस बजट बोल दिया जाता है कि दिस विल बी द बजट एंड एंटायर प्लेस हो या फिर किस तरीके का थीम होगा, एवरीथिंग इज गिवन ऑन दिस। इट कैन बी विद इन अ टीम ऑल्सो। टीम में कोई इंसान जो है वो छोड़ के जा रहा है, तो जब टीम लीडर है, ही विल नॉट से कि ओके आई एम गोइंग टू कम, वो कह देगा ओके यू अरेंज, आई जस्ट कम एंड एंजॉय। तो बाकी जो लीडर्स हैं, वो जो बाकी लोग हैं, दे वुड बी टेकिंग इनिशिएटिव टू अरेंज फॉर एवरीथिंग। एंड इन अ कंपनी, ये पेपर में क्वेश्चन आता बच्चे, दैट डज अ कंपनी फॉलो अ सिंगल लीडरशिप? नो, लीडरशिप इज समथिंग विच हैज टू बी followed, or you can say which has to be adopted according to the situation. The same leader can be democratic, the same leader can be autocratic, and the same leader can be मतलब कि free reign। जहाँ कंपनी के लिए बहुत important policy making है, there he would be autocratic, everyone has to follow the policies which have been framed, has to be followed। Where a teamwork has to be done, there it needs to be participative, and where we need to give autonomy to the employees to get the targets done, we need to be free। तो आपको इस वाले 3 मार्क्स का या 4 मार्क का क्वेश्चन आता, तो आपको ऐसे लिखना, इट हैज कम once or twice in fact। द लास्ट इज कम्युनिकेशन। उस दिन आप लोगों से जब आई वॉज टेकिंग दैट ऑफ, तो आई टोल्ड यू that communication is a very complex process, and communication is a two-way process. Why? Because what the person sender जो कहना चाहता है वो receiver तक पहुंचना चाहिए। And if you are using WhatsApps and all, you must have seen many times we have this miscommunication। मुझे बाकियों का तो नहीं पता, अपना पता है कि यस मेनी टाइम्स देयर इज अ मिस, मतलब कि सामने वाले को मैं कह रही हूँ ओके आप गुस्सा हो गए, नहीं भाई मैं गुस्सा नहीं हूँ, नहीं आप गुस्सा हो, मैं आपको आपसे ज़्यादा जानता हूँ। मेरे को फिर खुद को देखना पड़ता कि मुझसे ज़्यादा मुझे दूसरा कैसे जानता भाई। बट
sometimes it is, you know, taken in the way we are writing, the way we are speaking, it matters. And you know, in a company जब हम लोग बोलते हैं उसका मतलब कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए, तो मेनी ऑफ द पीपल दे टेक कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है इंग्लिश में बोलना. कम्युनिकेशन इज नॉट रिलेटेड टू अ लैंग्वेज. कम्युनिकेशन इज रिलेटेड टू कम्युनिकेट. It's just related to communicate. It is nothing related to language. मैं तमिल में बोलती हूँ, हिंदी में बोलती हूँ या पंजाबी में बोलती हूँ, जो मैं बोल रही हूँ वो दूसरे को समझ आना चाहिए. मैं आंखों से भी बोल सकती हूँ, मैं हाथ से भी बोल सकती हूँ, but it should be giving the same meaning. When I joined this LPS in मतलब कि दिलशाद गार्डन, तो उससे पहले मैं योजना विहार में थी, and my small kids, you know, the third fourth fifth वाले बच्चे ना, वो मेरे से बहुत ज़्यादा अटैच थे, बहुत ज़्यादा. मीन्स वो इतने अटैच थे, आप मानेंगे नहीं. फॉर 2 days सम ऑफ द चिल्ड्रन डिड नॉट टेक देयर लंच. आप मानेंगे नहीं, मुझे ना स्पेशली गाड़ी लेकर मुझे वापस बुलाया जाता था कि आप अपने बच्चों को समझाओ. एंड मेरा और उनका जो मतलब कि वो था ना, कम्युनिकेशन स्किल इतना स्ट्रांग था. आई नेवर नीडेड अ वर्ड टू टेल देम. And every time that you know, everyone will say, रामा मैम आप क्लास में होते हो तो ये बच्चे बिल्कुल खामोश कैसे रहते. तो we were having the annual function which was in another branch, क्योंकि योजना विहार is very small, वहाँ तो कुछ हो नहीं सकता. And suddenly my principal ma'am announced that I'll be you know, anchoring the entire function next day, अगले दिन. और हमारी चलती थी 24 मतलब कि 12 hours की रिहर्सल. अब हम लोग क्या करते थे, जब छोटे बच्चों के साथ में हम होते थे तो हम उनके साथ में नाचते थे. क्योंकि हमारे जो म्यूजिक टीचर होते थे वो आके हमें सिखा देते थे. एंड वी वर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ग्रुप. और वो ग्रुप होता था 2-2 क्लासेस के भी हो सकते हैं, या एक गाने का एक ग्रुप हो गया. तो अब क्या होता कि मैं एंकरिंग कर रही हूँ एंड माई ग्रुप इज स्टैंडिंग ऑन दैट कॉर्नर. Now what happened is कि मैं यहाँ से देख रही थी and I was, you know, giving them the instructions, and you know their entire eyes was on my कि मैं क्या instruct कर रही हूँ, and they were doing it. Then my principal ma'am noticed it and she said, your lovely children are missing you. इनको वहाँ से शिफ्ट करके तुम्हारे अपने सामने ला दो ताकि they are getting that. तो communication doesn't need the word. When your teacher says come here, it's a गुस्से वाला होता है. And if she saying come here, वो प्यार वाला होता है. आओ इधर आओ, that's a प्यार. Come here, गुस्से वाला होता है. Communication has to be very strong in a leader, in a supervisor, in a manager. अगर वो गलत तरीके से कम्युनिकेट करेगा, गलत वर्ड्स यूज करेगा, डबल मीनिंग में यूज करेगा, लाइक लास्ट टाइम यू डिस्कस that there are different meanings of ma, so that would give a wrong impression. And that is why when directing हम बोल रहे हैं ना, तो वहाँ communication का ज़रूरत है. क्योंकि when you are guiding your staff, तो your language, your body language, your gestures, यानी कि आपके hand and legs के जो movements, your eyes, eye contact, that should be exact. ये जो मैंने 8 लिखे हैं ना, this may come in your MCQs as the sequence of communication. Means sender जो कि भेज रहा है, exactly what has to be communicated is the message. Tomorrow is an off. Encoding यानी कि आप उसको किस, मतलब मैं आपको ये बुला रही हूँ, दिस इज द एनकोडिंग. मेरा मैसेज क्या है, आना, लेकिन मैं उसे कैसे बुला रही हूँ, मतलब कि द वे आई एम, जैसे हम लोग वो इमोजीज बनाते हैं, दैट इज एनकोडिंग. स्माइल, गुस्सा, दैट्स. मीडिया आप किसके थ्रू भेज रहे हो, पर्सनली बोलने वाले हो, फोन में बोलने वाले हो, मैसेज के थ्रू बोलने वाले हो. देन व्हाट, डिकोड करना, क्या लिखा है. रिसीवर उसको जब डिकोड कर लेता है एंड वो उसका जो फीडबैक होता है,
उसने उसे बिल्कुल वैसे ही समझा. एंड समटाइम्स देयर माइट बी नॉइस, जिसकी वजह से हम शायद जो लिखा है, नॉइस का मतलब नॉट द फिजिकल नॉइस, दैट मे बी एनीथिंग, it may not be communicated in the right manner. We have many barriers to communication. सबसे कॉमन जो पेपर में आता था वो था सेमेंटिक. आपके आता है सेमेंटिक यानी कि लैंग्वेज बैरियर. लैंग्वेज इज नॉट द लैंग्वेज विच वी आर स्पीकिंग. उसके अलावा आपके हैंड मूवमेंट्स, आपका टेक्निकल जार्गन, ये पेपर में आया था लास्ट, जब भी पेपर में आया था, आई थिंक इट वॉज 2019 वाला बैच था जिनको. द टेक्निकल वर्ड्स, यू शुड इंश्योर कि आप किसको बोल रहे हो. देन देयर इज बैरियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कंपनी ने इतने मतलब की पॉलिसी बना रखे हैं दैट यू आर नॉट एबल टू, लाइक इन अ स्केलर चेन, जो सुपरवाइजरी लेवल में होता है, ही इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट टू द हायर लेवल. तो डेफिनेटली देयर इज अ गैप. कंपनी ने पॉलिसी बना रखा कि आपको कुछ भी देना तो अपने उसके, अब शिकायत को कैसे आप दोगे भाई? शिकायत को आप कैसे ऊपर तक पहुंचाओगे? आपको बॉस से शिकायत है, आप उसी को लिखोगे कि आपसे मुझे शिकायत है. एंड इट हैपेंस इन द कंपनीज. द कंपनी शुड कीप अ क्लैरिटी. अगर बॉस से है तो देयर शुड बी सम अदर मीडिया जिसके थ्रू हम उनको कम्युनिकेट कर सकें. तो द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी शुड बी देयर. समटाइम्स यू वांट टू गिव सम रिवॉर्ड, मतलब आप कुछ बताना चाहते हो लेकिन कंपनी में है कि भाई छोड़ो, वी आर नॉट गोइंग टू हियर यू. समटाइम्स इट माइट बी अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम. आपका मेंटल स्टेटस इतना सही नहीं है. You may not be receiving or you may not be sending the message as it should be sent. It might be any mishap in your family, any personal loss. And next is personal barrier. Personal barrier और psychological में क्या फर्क है बच्चे की? Psychological is your mental state and personal is when you deliberately आप सोचते हो मैं क्यों दूं, मेरी तो बॉस से बनती नहीं है, मैं इसको क्यों हेल्प करूं. देयर माइट बी अ पर्सनल बैरियर जो आपने खुद बना लिया है, एंड देन कम्स अ 5 मार्कर क्वेश्चन, हाउ टू रिमूव द बैरियर्स. तो वेरी सिंपल, सेमांटिक है, लैंग्वेज बैरियर है, तो यू शुड अंडरस्टैंड एंड यू शुड स्पीक इन द लैंग्वेज विच इज अंडरस्टूड टू अदर्स. लाइक उस दिन आपको मैंने बताया था, अगर आप जापानीज को लाकर बोलोगे ना, जापानीज का इंग्लिश जो है वो हमें समझ नहीं आएगा. तो यू नीड टू मेक इट श्योर. कई बार क्या होता है, फॉल्टी ट्रांसलेशन होता है, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारी तमिल मूवीज. इतनी मस्त मूवीज होती है लेकिन जब वो हिंदी में उसको ट्रांसलेट करते हैं ना, उसको जब वो बोल रहे होते हैं ना, तो सच में मन करता कि मैं टीवी को ही फोड़ दूं. सो रॉन्ग ट्रांसलेशन होता है. इवन हम पुष्पा को हिंदी में देखकर आए थे एंड देन हमें लगा था कि हमने सरदर्द देखा. तेलुगु में इट्स वेरी नाइस, क्योंकि जो वर्ड्स हम हिंदी में यूज करते हैं ना, वी यूज अ प्योर लैंग्वेज, बट एक्चुअल में हम जो बोलते हैं ना वो प्योर नहीं होता. तो दैट इज उस दिन ना, मतलब एक तमिल मूवी है, बहुत फेमस मूवी है, एंड इट वाज आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज जब मैं छोटी थी. एंड उस दिन मैं ऐसे ही कुछ स्क्रॉल कर रही थी, उसमें लिखा हुआ था, नहीं क्या था, कुछ ऐसा देवदास करके था, और मुझे ऐसा लगा कि यार बहुत अच्छी, मतलब क्या हो. फिर जब मैंने उसका तमिल वो देखा, वार्ड में यार, तो फॉल्टी ट्रांसलेशंस. Then you are not speaking according to the level of the employees. आप वर्कर के साथ हो तो you need to use a bit low language. कभी हिंदी भी बोलना पड़ता है. If you are with the managers and then with, मतलब कि आप टेक्निकल स्टाफ के साथ हो तो आप दूसरी लैंग्वेज यूज कर रहे हो. You need to remove.
यू शुड नॉट कम्युनिकेट एनी वर्ड विच इज हैविंग डबल मीनिंग, कि दूसरे ने दूसरा मीनिंग निकाल लिया. When it comes to the organization, you need to remove those hindrances. ऑफिस के अंदर everyone should be given grievances box, suggestion box, meetings देख सकते हैं हम. For the for the personal or psychological balance, we need to have the counseling. So these are the ways to remove the barriers to communication. Now, while we were talking about the motivation, तो एक थियोरी है विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, जिसमें आता है मैस्लो. एंड मैस्लो वैसे तो ही वॉज अ साइकोलॉजिस्ट, एंड ही एम्फसाइज्ड दैट कोई भी काम करता है, चोर भी अगर चोरी करता है तो उसका साइकोलॉजी क्या है, उसको उसकी कोई एक पर्टिकुलर नीड फुलफिल नहीं हुई. जैसे दिखाते हैं ना, बचपन में उसके साथ ऐसा हुआ था तो वो बड़े होके वैसा बन गया. दैट्स साइकोलॉजी. अगर उसको भूख उसकी पूरी नहीं हो तो वो चोरी करेगा. अगर उसकी सोशल बिलोंगिंग नहीं है तो वो एग्रेसिव हो जाएगा. सो द साइकोलॉजिकल आपका जो है, दैट इज व्हाट ही सेज इज, हर इंसान को कुछ बेसिक नीड्स होते हैं, कुछ आपके जो है सेफ्टी नीड्स होते हैं, कुछ आपके बिलोंगिंग नीड्स होते हैं, कुछ आपके एस्टीम, आपकी इज्जत, रिकॉग्निशन, और कुछ आपके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होते हैं. दीज आर द नीड्स विच वी रिक्वायर इन ऑल द फील्ड्स, नॉट इन ऑर्गेनाइजेशन. और इसको पैरेलली ड्रॉ किया है दैट जिस तरीके से बेसिक साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड है हंगर, थर्स्ट, वैसे किसी भी कंपनी में हमारा जो बेसिक नीड होता है अच्छी सैलरी, अच्छे पर्क्स. सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी और सिक्योरिटी, हम चाहते हैं हमारी स्टेबल इनकम हो. हमारे पेरेंट्स हमें इतना क्यों पढ़ाते हैं? ताकि हमारी जो सैलरी है वो एक स्टेबल हो, हमारा एक जो मतलब कि खाने पीने के लिए जो सब्सिस्टेंस है वो पूरा हो. इन द कंपनी इट मे बी पैरालाइज्ड एज पेंशन प्लान्स. आप कंपनी छोड़ते हो किसी वजह से, आप कंपनी से रिटायर होते हो, तो यू आर गेटिंग दैट बेनिफिट. एफिलिएशन, सचमुच में हमें चाहिए होता है फ्रेंडशिप, बिलोंगिंगनेस. जब हम कहीं काम करते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, जैसे उस दिन आपको मैंने बताया था, वन एग्जाम्पल आई हैड गिवन यू, दैट व्हेन आई गो टू माय मदर्स और फादर्स प्लेस, आई एम द एप्पल ऑफ द आई. मेरा होता है कि सब कुछ, एवरीथिंग इज रमा, और इधर जाती हूँ तो मेरे को बंद भी कर देते हैं. तो नेचुरल है कि व्हेन यू डोंट हैव द कॉर्डियल रिलेशन, दैट वुड ऑलवेज, आपको हमेशा लगेगा यार छूटो यहाँ से, छूटो छूटो यहाँ से. मैंने ऐसे हैव सीन एफिलिएशन व्हेन इन द कंपनी. आपके ऐसा माहौल होना चाहिए जहाँ द पीपल आर हैविंग कॉर्डियल रिलेशंस, अ कंजीनियल एटमॉस्फेयर. स्टेटस हमारा एस्टीम नीड है. इन द कंपनी वी नीड जॉब टाइटल्स, प्रमोशंस, एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है अपनी सेल्फ फुलफिलमेंट. एक पीरियड के बाद हमें लगता है कि वी शुड डू दिस ऑल्सो, हमें खुद को करना चाहिए. इन द ऑर्गेनाइजेशन आपको यू शुड बी गिवन द ऑटोनॉमी. ये जो हम अब फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पढ़ते हैं बच्चा, ये आपका होता है मोटिवेशन के लिए. एंड दिस विल कम एज ओनली आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ इंसेंटिव. एंड टाइप में आपको फाइनेंशियल के साथ वो कौन सा है वो भी लिखना होता है. फाइनेंशियल का मतलब हो जाता है एनीथिंग विच इज इन टर्म्स ऑफ मनी, which goes directly into your bank. Productivity linked wage incentive. पहला फाइनेंशियल जो मतलब कि आपकी सैलरी के बाद हर एक वर्कर को अकॉर्डिंग टू वेज एक्ट 1/3 of the salary should be given as bonus.
दैट शुड बी देयर। एंड कई कंपनीज में क्या होता है, आप जितना काम करते हो, जैसे डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम होता है, वैसे वो देते हैं कि आपने पूरे साल जितना काम किया आपका हो रहा है। इवन दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इंसेंटिव फॉर द मैनेजर्स। बोनस आपका जो है उस लेवल पे आता है जहां मैनेजरियल नहीं होता है बोनस। एंड इंसेंटिव वेज हो जाता है व्हेन यू आर, आपके प्रोडक्शन में आपको टारगेट फिक्स कर दिया जाता है। दिस कैन बी देयर। Profit sharing, this is not done for all but it is done mostly for the top level management को दिया जाता है profit sharing। को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शंस, यानी कि देयर माइट बी गिविंग यू, कंपनीज में आपको जो है प्राइस, मार्केट प्राइस से आपको कम प्राइस में दे दिया जाए। मार्केट में आपकी कंपनी की कीमत है 1000 रुपीज, यू आर गिवन दैट आपको हम 100 रुपीज में दे रहे हैं बिकॉज यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग। In my husband's office, when Dabur completed 125 years, each manager were given 125 shares, not at money, free। और हम लोगों को सिर्फ इतनी शर्त है कि हम 1 साल तक उसको नहीं बेचेंगे। That's an incentive. इनके then retirement benefits, because when you retire आपको पीएफ, ग्रेचुटी, आपको ये सब पैसों से मिलता है, तो आप अपना जो ओल्ड एज है दैट कैन बी यूज्ड, आप उसको यूज कर सकते हो। पर क्विजाइड्स, ये बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। पर क्विजाइड्स मतलब द एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लाइक इन अ पर्टिकुलर लेवल, कुछ कंपनीज में कार अलाउंस मिलता है, हाउसिंग अलाउंस मिलता है, मेडिकल एंड एजुकेशन मिलता है जो सैलरी के अलावा होता है। स्पेशल अलाउंसेस आप बोल सकते हो। एंड ऑफ कोर्स पे एंड अलाउंसेस तो आपका है ही। द नेक्स्ट इज नॉन financial incentives, means which is not directly money but something which is giving you satisfaction, आपको अंदर से एक ग्रैटिट्यूड, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनरिचमेंट का मतलब हो जाता है बेटा आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी देना। आप एक अच्छा काम कर रहे हो, ओके यू डू, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, इट शुड नॉट बी बर्डन, इट शुड बी एनरिचमेंट। ये कैटेगरी भी आप ले लो। एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। मेनी कंपनीज गिव दी, जब भी आप मतलब कि आप दे रहे हो, सजेशन देते हो, या फिर इवन यू आर डन समथिंग गुड, तो कंपनी सर्टिफिकेट्स देती है सर्टन टाइम्स, जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। सर्टन टाइम्स दे मे बी गिविंग स्मॉल मेमेंटोज लाइक टी शर्ट्स दे दिए। तो दीज आर ऑल द एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन, टीम में दिया जाता है बहुत। एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन मीन्स allowing the employees to give their initiatives, उसमें आपको एक तो इनिशिएटिव दे सकते हैं। देन अगर कंपनी में अलग अलग, देखो एक होता है काम, दूसरा होता है कमिटीज, तो उसमें आपको मेंबर बना दिया जाए, आपको कोई की पोजीशन दिया जाए। इन मेनी ऑफ द कंपनीज द विमेन के लिए देयर इज सेपरेट सेल, तो एचआर में भी आपका होता है, प्रोडक्शन में भी होता है। तो इफ यू आर गिवन दैट पोजीशन कि वर्क कमिटी एचआर में यू आर द हेड, दैट्स आल्सो। एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट, दैट्स व्हेन यू आर यूजिंग द डिसेंट्रलाइजेशन, you are giving them the autonomy। job security, job security can be a negative aspect, क्योंकि जब हमें पता है ना, जैसे गवर्नमेंट में होता है हमें कोई नौकरी से नहीं निकालेगा तो हम काम करना छोड़ देते हैं। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज, प्रमोशंस, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्रेनिंग टाइम टू टाइम, क्योंकि आपने जब ज्वाइन किया तब कुछ और था, आफ्टर 4 years द थिंग्स चेंजेस, यू आर देयर। स्टेटस वो अलग अलग तरीके से हो सकता है आपके। द जॉब टाइटल्स, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दैट हेल्प्स इन गिविंग यू, अगर ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट अच्छा है
that helps you. So that is how directing का मतलब हो जाता है. अगर ये elements हमारे interest में हैं, we are given these opportunities, then it gives us better way to work. Now when you work in a company, you will be following a direct channel which is scalar, written, mostly written, which will be following through channels, because it will be establishing the superior to subordinate relationship. It will move in a channel. ऊपर से नीचे बॉस ने दिया, नीचे जो सबऑर्डिनेट है उसने आंसर दिया. This is called as formal communication. ये हमने जब ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा था ना, उसके अंदर ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी था. तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो कम्युनिकेशन होता है, दैट्स फॉर्मल. Whereas informal is a general chit chat, grapevine, because it may lead to leak of confidential matters. It may disregard the levels of authority. Sometimes it may even spread rumors. But on the other hand, बेटा किसी भी जगह पे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल का होना बहुत ज़रूरी है. The reason is, if formal communication is not there, the confidentiality of the company will end. And if the written communication is not there, that may lead to problems. आपके पास नहीं था तो आप तो सीधे बोल सकते हैं मेरे पास ये था ही नहीं तो why should मैं नहीं काम कर रहा हूँ. एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो हमने अभी पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट हमने पढ़ा इन द इंसेंटिव, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, उसमें हमने पढ़ा बिलोंगिंगनेस, पढ़ा मैस्लोस थ्योरी में. वहां हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का होना ज्यादा जरूरी है. बिकॉज अगर कंपनी में एक दूसरे से चिट चैट करने की परमिशन है, वी कम टू नो अबाउट ईच अदर. I may not be knowing you because you are my student. I may be knowing you when I talk to you. So informal communication is also as important, but it should also be seen कि it is not leading to rumors. क्योंकि rumor से कई बार पता है क्या होता है, कंपनीज में डायरेक्टली मतलब कि have the negative impact. मतलब people, अच्छा वो उसके साथ जा रहे हैं, इसका तो प्रमोशन होगा, एंड इवन बेचारे का प्रमोशन हो रहा होता है तो भी रोक दिया जाता है कि भाई दे विल टेक अ रॉन्ग, हमारे बारे में गलत सोचेंगे. सो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट वी शुड इंश्योर कि इट शुड नॉट बी वेरी फॉर्मल में भी आप बहुत ज़्यादा टाइट हो. द पीपल आर नॉट अलाउड टू गिव एनी सजेशन, वो नहीं होना चाहिए. एंड इनफॉर्मल में भी इट शुड बी दैट कि इट शुड नॉट स्प्रेड टू रूमर्स. So that is how directing takes place. So that's all in the chapter directing. We will be we will be doing all the MCQs on Tuesday, and probably on Thursday I'll be giving a short test, and then I'll move to staffing. Once we complete staffing, then we will come back to this question, this chapter along with the NCERT. But this is what we call as directing.